Welcome to Knowledge Junction. Today in this video, this is our first video in our ecology and environment series. Today in this video, we will be starting our what is ecology and environment terminology, and that is we will be making our background related to this topic. Before I proceed forward in this video, I will just request you guys, if you like my videos, to like, share and subscribe my channel, and also don't forget to comment down in the comment section below. So let's start. So before understanding, we should understand what is ecology. What is ecology? Ecology is nothing but it's an interaction. It's just an interaction of organism with their environment. What is ecology? Ecology is nothing but it's just an interaction or interrelationship between organism and environment. How an organism interact with its environment, with its surrounding. आसपास जो भी सराउंडिंग है, अपनी सराउंडिंग में ऑर्गेनिज्म, भी कोई ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बैक्टीरिया हो या फिर चाहे वो द लार्जेस्ट कम्युनिटी इट इज ह्यूमन बीइंग्स हो, सभी अपने आसपास अपनी जो वातावरण है उसके साथ इंटरैक्ट करते हैं. उसी इंटरेक्शन को इकोलॉजी कहते हैं. द वे दे इंटरैक्ट और द वे दे आर रिलेटेड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इकोलॉजी. सो बिफोर understand more things, first let's know few facts. Like father of ecology is Rater, and father of Indian ecology is Professor Ramdev Mishra. These are two facts, important facts, because it has been asked in Upsc, but the question was old, not the recent one, but just I'm mentioning so that you can, if you want to remember it, just remember. And the father of Indian ecology, Professor Ramdev Verma, it's mentioned in Ncert, that's why I'm mentioning here. So before moving forward, we should understand what is ecological hierarchy. Ecological hierarchy का मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसे इंटरेक्ट करता है पॉपुलेशन, और कैसे सीक्वेंस है किसी भी चीज़ का, ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन से कम्युनिटी टू इकोलॉजी, बायोम कैसे बनता है, बायोस्फीयर कैसे कंस्टिट्यूट होता है. तो दिस इज अ सीक्वेंस इन विच द कॉम्प्लेक्सिटी इज इंक्रीजिंग. सो दिस इज कॉल्ड द हायरार्की. कोई भी हायरार्की क्या होता है, फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन से थर्ड जनरेशन कैसे चीज़ें सीक्वेंस में हैं, उस चीज़ को हायरार्की कहते हैं. तो सिमिलर इन द सिमिलर वे हियर इज आल्सो देयर इज अ इकोलॉजिकल हायरार्की, दैट इज ऑर्गेनिज्म व्हिच इज द बेसिक. जैसे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल होता है, बेसिक यूनिट ऑफ एटम्स, एलिमेंट्स एटम्स होती हैं, वैसे ही बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की होती है ऑर्गेनिज्म. देन ऑर्गेनिज्म टू population, then population forms community, then community to ecosystem, then from ecosystem to biome, and then biosphere. So organism is basic unit of ecological hierarchy. In this way, when we move from organism to biosphere, the size also increases. Complexity increases. Means the individual organism is the smallest, so less complex. जैसे हम किसी भी बॉडी स्ट्रक्चर को अगर देखते हैं तो सेल सबसे सिंपलीस्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर होता है. फिर सेल ग्रुप ऑफ सेल्स बनाते हैं ऑर्गन्स, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मिक्स द ऑर्गन सिस्टम एक ऑर्गेनिज्म बना देता है, एक ह्यूमन बीइंग का फॉर्मेशन होता है. इन दिस सिमिलर, तो कॉम्प्लेक्सिटी हर स्टेज पे इंक्रीज होती जाती है. इन द सिमिलर वे, when we move from organism to biosphere,
complexity increases and size also increases. So organism is the basic unit. Species क्या होती है? Species is basically it's a basic unit of classification defined as a group of living organisms. कोई भी living organism group को similar which are similar in structure, function and behavior, and their parents also interbreed among themselves, and they basically have a single gene pool. जितने भी जीन्स होंगे उस स्पीशीज के सिंगल होंगे, कोई भी डिफरेंशिएशन होगा. दे कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स, दे कैन फाइंड देयर स्ट्रक्चर, behavior, they always similar under natural conditions, and they are isolated from other group of organisms. This is known as species. Basic unit of classification, group of living organisms, similar in structure, function, and they can interbreed among themselves. They have a common gene pool. They are known as species. Some terms related to species like endemic. एंडेमिक स्पीशीज क्या है? एंडेमिक स्पीशीज वैसे स्पीशीज जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं. स्पीशीज विच इज प्रेजेंट इन अ सिंगल पर्टिकुलर एरिया इज एंडेमिक स्पीशीज. फॉर एग्जांपल कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है. दे आर एंडेमिक टू ऑस्ट्रेलिया. मेटासिकोआ जो प्लांट है, इट्स फाउंड ओनली इन वैली ऑफ चाइना की वैलीज में पाई जाती है मेटासिकोआ. तो ये ऑल्सो एंडेमिक है. कुछ अपने यहाँ पे देख लेते हैं, निकुरंजी जो फ्लावर है जो 12 साल में ब्लॉसम होता है, वो भी अपने घाट में ही पाया जाता है ओनली. तो इसलिए वो वेस्टर्न घाट्स के लिए एंडेमिक हुआ. किसी पार्टिकुलर कोई भी स्पीशीज जो पार्टिकुलर एरिया में पाई है, उसकी पॉपुलेशन पाई जाए, दैट स्पीशीज इज नोन एज एंडेमिक एरिया. नाउ कीस्टोन स्पीशीज. कीस्टोन स्पीशीज क्या है? कीस्टोन स्पीशीज which have great influence on the community characteristic related to their low abundance, low population. मतलब वैसे स्पीशीज जो भले ही अपनी जो उनकी जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में भले ही उनका नंबर कम हो, they may be few in number, but still they influence the whole community. उनकी जो इन्फ्लुएंस है, उनके बिना वो कम्युनिटी इनकम्प्लीट रहेगी. अगर वो हट जाए ना, तो सारे जैसे फूड चेन चलती है ना, तो सारे इंटरडिस्ट्रिक्ट अगर वो मिसिंग हो जाए, वो स्पीशीज मिसिंग हो जाए, तो पूरी की पूरी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाती है. तो सच स्पीशीज आर एज कीस्टोन स्पीशीज. दो लेस इन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. दे आर इंपॉर्टेंट for the support of life in that ecosystem. Species is known as keystone species. For example, देखते हैं कंगारू रैट इन डेजर्ट्स. डेजर्ट्स में कंगारू रैट का प्रेजेंस हुआ. कीस्टोन कंगारू रैट इज कीस्टोन स्पीशीज इन डेजर्ट. फिर लायन few नंबर ऑफ लायंस होते हैं, लेकिन फिर भी उनका जो इन्फ्लुएंस होता है फॉरेस्ट में वो बहुत ज़्यादा होता है. अगर वो ना रहे ना, तो प्रेडेटर कम करता है लायन. तो जिराफ की नंबर बढ़ जाएंगे, डियर की नंबर बढ़ जाएंगे, तो डियर सब की नंबर बढ़ जाएगी, तो ओवर ग्रेजिंग हो जाएगा. इसीलिए किसी भी एरिया की फूड चेन को फूड का जो फ्लो है एक अच्छे तरीके से चलता है, कि फ्लो करे, उस चीज़ को मेंटेन करने के जो स्पीशीज जो हायर स्टेज, हायर कॉम्प्लेक्सिटीज, और यू कैन से टर्शियरी स्टेज ऑफ कंज्यूमर में जो स्पीशीज पाई जाती है वो हो जाएंगी कम्युनिटी पे. दो दे आर लेस इन नंबर, बट स्टिल दे हैव मैक्सिमम इफेक्ट. फिग ट्री भी देखते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में. फिग ट्री का नाम, दिस आर आल्सो फिग ट्री इज आल्सो कीस्टोन स्पीशीज. नाउ क्रिटिकल लिंक स्पीशीज. क्रिटिकल लिंक स्पीशीज वैसे स्पीशीज होती हैं जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में लिंक स्टैब्लिश करती हैं. दे लिंक डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म. जैसे मान लो माइकोराइजल फंजाई है. Mycorrhizal fungi, it's a symbiotic association. It's a fungi which have a symbiotic association with the group with the roots of higher plants like pinus or
स्पाइनोसाइकस जो प्लांट्स होती हैं उनके रूट्स में ये सर्वाइव करती हैं. तो they are a link species between the bias because जो माइक्रोरैजल फंगस है इसके बिना वो ग्रो नहीं कर पाएंगी. तो दे आर लिंकिंग स्पीशीज टू ग्रो. एंड सिमिलरली ना सम इंसेक्ट्स जो जिनके बिना पॉलिनेशन नहीं हो सकता. एक फ्लावर्स से एक पॉलेंस का मूव करना एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर, दिस इज पॉलिनेशन. तो कुछ इंसेक्ट्स ना बहुत पार्टिकुलर होती हैं कि वो पार्टिकुलर फ्लावर्स की पॉलिनेशन होगी तभी पॉसिबल है जब वो इंसेक्ट वन फ्लावर दूसरे फ्लावर पे मूव करे. तो इंसेक्ट आल्सो just like a link species, such are known as critical link species. Now community. अब देखते हैं community क्या है. Community is basically I've mentioned that it's a group of population. Nothing but group of population. अब community consists of two. Biotic community अगर देखें two types के स्पीशीज होते हैं. बायोटिक कम्युनिटी और एबायोटिक चीज़ें. बायोटिक एंड एबायोटिक. बायोटिक मीन्स लिविंग, एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग. जो चीज़ नॉन लिविंग हो जैसे एयर, वाटर, सॉइल, दीज आर एबायोटिक चीज़ें होती हैं. और बायोटिक जो बायो है तो लाइफ होना मस्ट है. तो बायोटिक मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो कम्युनिटी में बायोटिक कम्युनिटी वी विल टॉक अबाउट. कम्युनिटी मीन्स बायोटिक स्पीशीज मेनली. तो बायोटिक कम्युनिटी इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं अपन एनिमल community plus plant community plus microbes also come under living organisms. So biotic community plus plant community, animal community plus microbes, तीन community को मिला के हम कहते हैं biotic community. तो characteristic biotic community क्या क्या होती है. तो जैसे species diversity, कोई community में होगी तो कोई community है obviously diversity क्योंकि because I have told you that group of population is community. तो group of population क्या था. single species constitute individuals of single species make population और different species group individuals of different species together forms the community. तो इसलिए there should be species diversity. तभी H1 species, T1 species, L3 species ये सब mention किया था मैंने. तो ये different species individuals of species. तो स्पीशीज डाइवर्सिटी होगी. एक कैरेक्टरिस्टिक है कम्युनिटी का. फिर डोमिनेंस. द हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ अ स्पीशीज प्रेजेंट इन कम्युनिटी इज डोमिनेंट. कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी भी कम्युनिटी में अगर वो ज़्यादा है, इंडिविजुअल ज़्यादा हैं इंडिविजुअल्स, तो दैट कम्युनिटी इज नोन एज डोमिनेंस. तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो कम्युनिटी हिमालयन एरियाज एरियाज में तो पाइनस के जो प्लांट्स है बहुत ज़्यादा देखने को मिले. तो that community is dominant in that area. Similarly, Prosopis flora. We will be studying this plant in invasive species. When we cover invasive species, then we will study about it. Prosopis species communities are very common in Aravalli Hills, or you can also must have seen Prosopis in ridge area, Delhi ridge area. Lot of Prosopis plants are there. That community is dominant in that region. Then you can also, another characteristic of species is community is stratification. Stratification means layering. Different layers of this will be formed from small to the bigger one. So जैसे कि अगर फॉरेस्ट का ही देखें तो जैसे shrubs होंगी, under shrubs होंगे, under shrubs, then shrubs, उससे पहले herbs होंगे, under shrubs and then trees. तो this is layering, this is stratification. छोटे से लेके बड़े तक की different communities एक यहाँ पाई जाएं, that is called stratification of a community. तो for example अब हम देखते हैं stratification of lakes. तो lakes की stratification देखते हैं. Stratification
स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ लेक्स देखते हैं। स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ लेक्स, तो कोई भी अगर हम कोई भी एक लेक होता है ना ऐसा, ठीक है, इसको हम ऐसे डिवाइड कर लेते हैं। तो जो लेक का जो सबसे डार्क वाटर है लेक में, जो सबसे नीचा पोर्शन होता है जहाँ लाइट अच्छे नहीं पहुंच पाती है, दैट रीजन इज कॉल्ड प्रोफंडल रीजन। प्रोफंडल एंड द एयर विच इज गेटिंग sufficient amount of light, जहाँ लाइट sufficient amount में है, जहाँ लाइट अचीव कर सकती है, that area is called limnatic zone, fundal zone, and the area which is little muddy and जो किनारे पे होता है, जैसे ये जमीन है और इसके किनारे से वाटर स्टार्ट हो जा रहा है, तो जो थोड़ा मडी होगा और लिटिल मार टाइप, that is called littoral। तो किनारे होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा। This is stratification of lakes based on the light. For no light reaching here. Here limnatic zone, that is insufficient light. Sufficient light. Littoral, muddy region, ये हो जाएंगे marshy थोड़ा, marshy. So this is stratification of lakes. Similarly stratification of forest अगर देखें, stratification of forest, तो ये मूवमेंट, सबसे पहले तो हर्ब्स होंगे, फिर अंडर श्रब्स होंगे, ट्रीज होंगे, एक लेयर बाय लेयर मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है फॉरेस्ट में, मल्टी स्टोरल्स भी कहते हैं। ट्रिपल फॉरेस्ट में अगर देखें तो हमेशा नीचे सब नीचे क्लाइंबर्स, हर्ब्स, ये सारे जमीन पे रहेंगे, उससे झाड़ियों वाली श्रब्स आ जाएंगी, फिर उससे भी थोड़ी बड़ी वाले श्रब्स एंड ट्रीज ऑफ ग्रेटर हाइट्स, 1 मीटर की लंबी ट्रीज आ जाएंगी। This is stratification of forest. Now another point is succession. Succession क्या है? What do you mean by succession? Succession का मतलब है just in simple language कि development of plant community on barren area. कोई भी बंजर जमीन पे कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर जन्म होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो ग्रो करना शुरू करता है, दैट इज नोन एज सक्सेशन। एंड सक्सेशन कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बैरन एरिया में हो। सक्सेशन इज ऑफ 2 टाइप्स, प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन। तो प्राइमरी सक्सेशन जो होता है वो तो बैरन एरिया में होगा, हैप्स ऑन बैरन एरिया जहाँ कोई लाइफ नहीं थी, वहाँ पैदा हो जाए, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सक्सेशन। और जो ऑर्गेनिजम्स होंगे, ऑर्गेनिजम्स को पायनियर कम्युनिटी, कोई कम्युनिटी उस बंजर जमीन पे ग्रो करेगी, दैट कम्युनिटी इज नोन एज पायनियर कम्युनिटी, क्योंकि वो फर्स्ट कम्युनिटी है कि बैरन एरिया को इनहैबिट करने वाली। एंड द सेकेंडरी सक्सेशन मतलब है सेकेंडरी सक्सेशन का मतलब है कि वो पहले बैरन एरिया नहीं थी, वहाँ पे लाइफ थी पहले, बट ड्यू टू सम नेचुरल कैलामिटीज लाइक वॉल्केनिक इरप्शन या फिर फ्लड, कोई भी नेचुरल एक्स्ट्रा अर्थक्वेक, किसी भी या फिर फॉरेस्ट फायर, किसी भी नेचुरल कैलामिटी की वजह से वहाँ की लाइफ एंड हो गई है और कुछ बहुत सालों, बहुत बरसों के बाद लाइफ अगेन रीअपियर हो रही है, तो दैट कम्युनिटी इज, दैट सक्सेशन इज नोन एज सेकेंडरी सक्सेशन and that community is known as secondary community. That community is known as secondary community. And
एंड वाटर क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या होते हैं, जो किसी भी कम्युनिटी में जो सबसे टॉप पे सब में, मतलब उसके बाद कोई और ऑर्गेनिज्म नहीं है। जैसे अगर ह्यूमंस में देखा जाए तो, मतलब एनिमल्स में देखा जाए तो एनिमल्स में सबसे पहले फिश आती हैं, एम्फीबियंस पैदा हुए, देन रेप्टाइल्स, एक हायरार्की अगर फॉलो की जाए, देन बर्ड्स एंड देन मैमल्स। द मैक्स मैमल्स आर हाईएस्ट कम्युनिटी, मैमल्स से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। तो मैमल्स इज नोन एज क्लाइमेक्स कम्युनिटी। सिमिलरली इन फॉरेस्ट अगर देखें, ट्रीज, लार्ज ट्रीज आर नोन एज climax community. So, angiosperms are known as climax community. So this is it in this video. So stay tuned with us for the next one. And if you like my videos, do like, share, and subscribe my channel. And also don't forget to comment down the comment section below. Have a great day. Thank you.